Good morning students. So in the previous class we have taken examples in which we have seen that how to find the vector AB, how to find its magnitude, as well as we have seen how to find the unit vector along some particular direction. Correct. So today again we will take some more examples. So today we will take example from the exercise 5.1. That is this exercise is given on page number 151 and 152. So see here I have written some examples here. तो दैट इज़ 10th एग्जाम्पल है, यहाँ पे 11 में का फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, बाद में 12th और 14. तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे 10th एग्जाम्पल. तो थोड़े एग्जाम्पल विल टेक रैंडमली, ठीक है. तो यहाँ पे देखो 10th एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर ए बी दिया है एंड द इनिशियल पॉइंट ए इज गिवन एज coordinates are given 1 5 0. then you have to find the terminal point B. यानी यहाँ पे क्या गिवन है, देखो 10th एग्जाम्पल में what is given here, vector AB is given, AB bar is equal to 2i cap minus 4j cap plus 7k cap. After this what is given, coordinate of the point A, this is given as 1 5 0. and coordinate of point B we have to find. Coordinate of point B we have to find. तो सिंपल है, वी नो हाउ टू फाइंड वेक्टर ए बी, बस वही कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे. तो नाउ सी यार, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो विल टेक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B. सपोज दिस कोऑर्डिनेट्स आर विल टेक ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी. क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे, अब यहाँ पे वेक्टर ए बी दिया है, तो नेचुरली यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम किया मैंने, ए बी सी. तो जस्ट फाइंड वेक्टर ए बी एंड इक्वेट दिस. तो देयरफॉर विल गेट हियर वेक्टर ए बी. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वेक्टर ए बी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी. तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लिख लेते कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 5 0. then position vector of point B is equal to what is A B C, ठीक है. and therefore vector AB यानी A B bar is equal to, we know formula क्या है, position vector of point B minus position vector of point A. तो this is equal to, अब देखो position vector of the point B क्या है यहाँ पे, ए बी सी माइनस ए क्या है 1 5 0. एंड देयरफॉर व्हाट विल गेट हियर, तो देयरफॉर विल गेट हियर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, हाँ तो देखो अब क्या देंगे यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स यू विल गेट ए माइनस 1, ठीक है, कॉमा व्हाट इज बी माइनस 5, अगेन C minus 0. So that is C minus 0. And therefore we can write here vector AB is equal to, what will get here, इसको IJK के फॉर्म में लिखते हैं, A minus 1 I cap plus B minus 5 yes J cap and plus C cap. तो देखो ये हो गया. अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर AB दिया है, इसको 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली वी आर ऑब्टेन वेक्टर ए बी, इसको लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर व्हाट इज वेक्टर ए बी, सो वी कैन इक्वेट इट. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, इक्वेशन 1 and 2 एम्प्लाइज, तो इक्वेट इट. तो व्हाट विल गेट हियर, देयरफॉर विल गेट हियर 2i कैप माइनस 4j कैप plus 7k cap is equal to, what will get here, A minus 1 I cap plus B minus 5 J cap and plus C K cap. And we know here now both the vectors are equal, दोनों के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब क्या है, corresponding components are equal. तो therefore this implies, देखो component x component is equal to x component, that means you will get 2 is equal to a minus 1
After this, what is minus 4 is equal to b minus 5. Then 7 is equal to c. Because we know if two vectors are equal, their components are equal, and therefore from this what we will get, we will transfer this here. That means we will get a is equal to 3. Here if you transfer, what will you get? b is equal to plus 5 हो जाएंगे यहाँ पे minus what is 1, and what is here? c is equal to 7. And therefore coordinate of point, what is that? आपको b के कोऑर्डिनेट फाइंड करना था. Therefore coordinate of point b is equal to what is a b c. That means you will get 3, 1 and 7. देखो ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. ओके. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दे के रहेंगे और आपको ए के फाइंड करना पड़ेगा, तो सेम मेथड से आप कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी अगर पूछा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं अपन 3i प्लस j प्लस 7 k कैप. ठीक है. अब उसके बाद में देखो ये एग्जाम्पल 11 में का फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकंड एग्जाम्पल आई विल गिव होमवर्क. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर. तो सी व्हाट इज गिवन? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर गिवन, व्हाट इज 3, 2, -4. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, these are given as what is 9, 8, -10. Coordinate of point C, that is given as what is -2, -3 and 1. So we have to prove these 3 points are collinear. तो अब देखो यहाँ पे, अब कोलिनियर मैंने बताया था कैसे प्रूव करना है. इफ यू हैव टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 2 वेक्टर फाइंड कर लो, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी फाइंड कर लो. If you prove that these 2 vectors are parallel and if their initial point is same, then we can say that point A, B and C are what is collinear. That means here you have to find vector AB as well as vector AC. So we know how to find vector AB and AC. So for this what you have to do? You have to write the position vector. So we can write position vector of point A is equal to 3, 2, -4. No need of writing in terms of ijk. Again here position vector of what is point B is equal to 9, 8, -10. Then position vector of point what is C is equal to -2, -3 and 1. So now find vector AB. So therefore vector AB is equal to, what do you get here? Position vector of point B minus position vector of point A. So therefore this is equal to, so what is position vector of point B? So this is what 9, 8, -10 minus position vector of the point A is what 3, 2, -4, and therefore this is equal to, so what will get here? Difference. तो 9 minus this one, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6, then 8 minus 2 and what will get here? Again 6, -10 माइनस प्लस 4 हो जाएंगे ना, ये -6 आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. दैट मीन्स वी विल गेट हियर 6i प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप. ठीक है. एंड फ्रॉम दिस वी कैन टेक 6 कॉमन, तो विल गेट हियर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 1. देखो दिस इज व्हाट वेक्टर ए बी. ओके. आफ्टर दिस क्या करना है आपको? वेक्टर ए सी फाइंड कर लो. फाइंड वेक्टर ए सी. वेक्टर ए सी. तो वेक्टर ए सी मीन्स व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. तो therefore this is equal to, what will get? So position vector of the point C is what? Yeah, -2, -3 and check it, -2, -3 and 1 minus position vector of the point A, what is 3, 2 and -4. And therefore if you simplify this, what will you get? See here, -2 -3, that means -5. Okay. Again here -3 -2, this is also -5.
and 1 minus minus plus 4 यानी 5. तो therefore we will get here minus 5y minus 5j cap and plus 5k cap. ठीक है, तो see here we can take again common. तो फ्रॉम दिस व्हाट विल डू, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 6 इन द ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. तो हियर ऑल्सो विल ट्राई टू गेट दैट टाइप ऑफ वेक्टर. तो फ्रॉम दिस विल टेक -5 कॉमन. तो विल गेट व्हाट इज हियर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस तो देयरफॉर तो क्या करेंगे, अब देखो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. देयरफॉर विल गेट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू -1/5 वेक्टर एसी. तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 2. तो व्हाट विल डू, विल पुट दिस वैल्यू हियर. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड यू कैन पुट हियर ऑल्सो. दैट डज नॉट मेक ए डिफरेंस. तो विल put this value in the equation 1. So we can say putting in 1, and therefore we'll get equation 1 implies what will get here, if we put here we'll get here vector AB is equal to 6 and into what is this, I plus j minus k, that is what, -1/5 is. So -1/5 times of vector AC. That means we can say here vector AB and AB bar is equal to -6/5 AC bar. अब AC बार बोलो या वेक्टर AC बोलो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यानी देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो therefore we can see here vector AB is a scalar multiple. पॉजिटिव रहो या निगेटिव कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर AC. Therefore vector AB is parallel to क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर है तो वेक्टर्स क्या रहेंगे, पैरेलल, एंड देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम. देखो इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम. ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर AB एंड वेक्टर AC आर वी कैन से कोलिनियर. देखो इनिशियल पॉइंट सेम है इसीलिए क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे. एंड देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर. देखो यानी अगर आपको 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, अगर आपको 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करना है, आपको वेक्टर AB फाइंड करना है. आपको मालूम है वेक्टर AB कैसे फाइंड करना है, वेक्टर AC फाइंड करो. ऑलवेज बेटर टू टेक इनिशियल पॉइंट सेम, क्योंकि 3 पॉइंट है. आप वेक्टर AB और वेक्टर AC फाइंड करो या आप वेक्टर BA और BC फाइंड करो, इनिशियल पॉइंट सेम लिया तो बेटर. अब इसमें कैसा हो गया, वेक्टर AB, देखो वेक्टर AB यानी ये ऐसा आएगा, ये हो गया वेक्टर AB. अब वेक्टर AC और पैरेलल है, दोनों कोलिनियर है, पैरेलल है यानी. तो देखो वेक्टर AC यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोलिनियर, तो ये ऐसे ही जाने वाला है, यानी इसका मतलब पॉइंट ABC क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे यानी. तो इसको ठीक है, तो इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. यानी ये वाली कंडीशन जो बताया था मैंने, x वेक्टर A प्लस y वेक्टर B प्लस z वेक्टर C इक्वल टू 0, सच दैट अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 0 आता होगा तो ये पॉइंट A, B एंड C क्या रहते हैं, कोलिनियर. तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C के फॉर्म में लिख के आपको इसके जो कोफिशिएंट आएंगे उसका एडिशन अगर 0 आता है तो कोलिनियर आएंगे. मगर बेटर वे ये मेथड से करो आप. ठीक है, तो कोई भी 3 पॉइंट रो, अगर यहाँ पे नोटेशन चेंज हुए तो उसके हिसाब से लेना. अगर पॉइंट PQR दिया है तो वेक्टर PQ और वेक्टर PR फाइंड करो, और उसके बाद में वन वेक्टर, कोई भी वेक्टर है. देखो अब मैं चाहे तो यहाँ पे वेक्टर AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5/6 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए याद रखो कोई भी वेक्टर यानी पॉइंट्स को अगर आपको कोलिनियर अगर प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, 2 वेक्टर फाइंड करना है और वो 2 वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम लो. और इफ वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, इन दैट केस वी कैन से व्हाट इज पॉइंट्स आर, यानी इन दैट केस क्या बोलेंगे, वेक्टर्स आर पैरेलल. पैरेलल है तो कोलिनियर रहेंगे, कोलिनियर है और उसका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसीलिए यानी क्या रहेंगे,
पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल 12th एग्जाम्पल, और 12th एग्जाम्पल में क्या दिया, इफ द वेक्टर्स क्या दिए आर कोलिनियर। देखो लेट अस टेक यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया है 2i प्लस qj प्लस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 4i माइनस 5j प्लस 6k। तो सी व्हाट इज गिवन, दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो yesterday we have made one list, yesterday or day before yesterday we have made one list। आपको ये बताता है कि दो वेक्टर अगर दिए, वेक्टर ए अगर ऐसा दिया होगा a1i प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, एंड सपोज योर वेक्टर b इज गिवन व्हाट इज b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 व्हाट इज दैट k कैप, and in that case if these vectors are what is parallel, आपको मालूम है if the vectors are parallel they are what is collinear, collinear है तो parallel। तो कब रहते a and b are parallel if and only what is a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to what is that a3 by b3। ये रिजल्ट है, बताया था मैंने। तो आप ये रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हैं कि क्या दिया वेक्टर्स आर कोलिनियर देयरफॉर ए इज पैरेलल टू बी, देयरफॉर वेक्टर बी इज ए स्केलर टेंसर वेक्टर है, इससे भी कर सकते हैं, मगर इससे इजी जाएगा। हाँ तो क्या है यहाँ पे, तो वी कैन से सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, देखिए एमसीक्यू में वगैरह आ सकती है इस टाइप के, आर कोलिनियर therefore we can say vector A is parallel to vector B and therefore, हाँ तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। पैरेलल है या कोलिनियर है तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2/4, देखो रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आई कैप, बाद में ये q/-5 is equal to 3/6, that means we will get 1/2 is equal to q/-5 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो ये 1/2 है तो कोई भी एक ले लो, तो देखो व्हाट विल गेट हियर q/-5 इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट मीन्स q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर 5 यानी -5/2। तो ये हो गया आंसर। देखो बेसिक रिजल्ट मालूम रहना चाहिए, इसीलिए मैंने कल जो लिस्ट बना के दिया आप लोगों को, रिजल्ट की एक लिस्ट बनाई दिया बनने, वो रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इवन 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि है ही ज़्यादा कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं, रेशियो लेके सीधा क्यू की वैल्यू आएंगी। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अब देखो ये 14th एग्जाम्पल, अब ये 14th एग्जाम्पल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स, एक बार 4 मार्क के लिए इस टाइप का एग्जाम्पल आया था इन्हें। तो क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 3 वेक्टर्स है। तो हियर व्हाट विल डू, तो लेट अस टेक हियर दिस वेक्टर विल टेक आर, नोटेशन कोई भी ले सकते हैं आप। हाँ तो क्या करें, फर्स्ट वेक्टर को आई लेंगे, तो वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट इज हियर -i कैप -3j कैप एंड +4 कैप, दिस इज वेक्टर r। एंड ये जो रिमेनिंग वेक्टर्स है इसको a b c ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप +j कैप -4k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप and plus what is that 3k cap, and vector c is equal to 3i cap plus j cap -2k cap। तो ये 4 वेक्टर्स आर गिवन। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू एक्सप्रेस फर्स्ट वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 3 वेक्टर्स। एक बार चेक कर लेते हैं, r -i कैप -3j +4k है, सेकेंड वेक्टर करेक्ट है, 2i + j -4k, 2i - j +3k, 3i + j -2k, ओके। हाँ तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, देखो टू एक्सप्रेस वेक्टर r एज
a linear combination of vector A, vector B and vector C. That means what? आपको मालूम है लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? दैट इज वेक्टर R इज इक्वल टू क्या करना है आपको? x वेक्टर A प्लस y वेक्टर B प्लस z वेक्टर C, यानी आपको क्या करना है? वेक्टर R को ये फॉर्म में लिखना है. तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 1 वेयर व्हाट इज हियर x, y एंड z आर स्केलर्स. अब ये स्केलर्स पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी रह सकते हैं, सभी जीरो नहीं चाहिए. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है? देखो सभी वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज r. व्हाट इज r? माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू x इंटू तो व्हाट इज हियर? x इंटू वेक्टर a. वेक्टर a इज व्हाट हियर? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप प्लस y इन द ब्रैकेट b. b इज व्हाट हियर? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस z इंटू, आप चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं. ठीक है. हाँ, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे? 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. क्या किया मैंने? इक्वेशन 1 में r, a, b एंड c ये सब वेक्टर की वैल्यू पुट कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z. आपको क्या करना है? x, y, z की वैल्यू फाइंड करना है और ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है. अब x, y, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड को कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या? नहीं कर सकते, यानी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे. क्या करेंगे अपन? राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इन दिस फॉर्म. That means what we'll do, we'll collect the terms of vector I, then vector j and vector k cap. ठीक है. तो therefore here we can write like this: minus I cap minus 3j cap plus 4k cap. This one as it is equal to what we'll get here? 2x I cap plus x j cap minus 4x k cap. Just first of all simplify this, then multiply plus 2y I cap माइनस वाई जे कैप प्लस 3y k कैप प्लस मल्टीप्लाई बाय z 3z I कैप प्लस z j कैप माइनस 2z k कैप. ओके. हाँ, तो व्हाट विल डू हियर? नाउ दिस इज इक्वल टू, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, तो माइनस I कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो 2x, देखो आई कैप की टर्म, ये आई कैप की टर्म यहाँ पे प्लस 2y एंड अगेन वन मोर टर्म यहाँ पे प्लस 3z. आई कैप कॉमन. ओके. देन प्लस जे कैप. व्हाट इज देयर? x, देखो यहाँ पे माइनस y प्लस z जे कैप. आफ्टर दिस k plus what is here? k यानी what is here? minus 4x plus 3y, देखो k की टर्म एंड माइनस 2z k कैप. ओके. एंड देन इक्वेटिंग कंपेयर कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल है, तो इसलिए कॉम्पोनेंट को आप इक्वेट कर सकते हैं. तो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS and RHS. So if you compare this, so we'll write this one first. So what we'll get? See here we'll get three equations. So 2x plus 2y plus 3z is equal to minus 1. देखो coefficient of vector I cap is equal to coefficient of I cap. After this here what is? X minus y plus z is equal to what is? minus 3. बराबर है? X minus y plus z is equal to minus 3. After this what is? minus 4x plus 3y minus 2z is equal to 4. So see here we have these three equations
एंड नाउ यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड की अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो आप कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कौन से मेथड से करेंगे? यस, if you remember in the 11th standard we have studied determinant chapter and in that determinant chapter we have studied Cramer's rule। तो आप x y z की वैल्यू Cramer's rule से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी मेथड ये भी है, आप मैट्रासेस भी यूज कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड मैट्रासेस आल्सो। तो बाय रिडक्शन मेथड आप x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो विच वन इज बेटर, जो भी आपको इजी लगता है। तो क्या करेंगे, इसको Cramer's rule से ही कर लेते हैं। अब Cramer's rule में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे D याद है, D का मतलब क्या होता है? अब ये कैलकुलेशन करना है आपको। D यानी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x y z। तो यू विल गेट हियर व्हाट इज 2 2 3 देन 1 -1 1 देन -4 3 -2। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। डी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले मैं dx का मतलब क्या होता है? दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डी बाय रिप्लेसिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट टर्म। देखो ये इक्वेशन प्रॉपर्ली अरेंज रहना चाहिए। ये सब कांस्टेंट टर्म है, यानी क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट टर्म से रिड्यूस करना है। दैट मीन्स -1 -3 एंड व्हाट इज दैट 4। देखो यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x को रिप्लेस कर रहे हैं एंड दिस वन एज इट इज 2 -1 3 and 3 1 -2। so this also we have to simplify। after this what is dy? dy means क्या करना है, again from d only you have to find। तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज रहेंगे 2 1 -4 and you have to replace coefficient of y by constant term। देखो कोएफिशिएंट ऑफ y को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। दैट इज व्हाट -1 -3 4 -1 -3 4। दिस वन एज इट इज d से फाइंड कर रहे सभी 3 1 -2 एंड व्हाट इज दैट dz इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो व्हाट यू हैव टू हियर इन द d यू हैव टू रिप्लेस लास्ट कॉलम, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ z को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो दिस वन एज इट इज 2 1 -4 2 -1 3 एंड हियर व्हाट इज 3 सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 -3 सॉरी ये सेम है। हाँ तो ये क्या आ जाएगा -1 -3 एंड 4। देखो अब यहाँ पे एक भी वैल्यू डिटरमिनेंट की अगर गलत हुई तो आपकी x y z की वैल्यू गलत आने वाली है और आगे का पूरा गलत होने वाला है। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना ही चाहिए। आप लोगों को डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते आना ही चाहिए। अब आई होप दैट सबको मालूम है अब डिटरमिनेंट। तो देखो अब ये 4 डिटरमिनेंट लिखे मैंने। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे 2 इन द ब्रैकेट क्या करना है, ये छोड़ देना है आपको, ये रो कॉलम को छोड़ना है और ये कितना आएगा -2 यानी पहले ये मल्टीप्लाई करना है -2 और ये लेते समय साइन चेंज, ऐसा लेते समय साइन चेंज यानी -3। ठीक है, देन दिस टर्म -2 व्हाइल टेकिंग दिस मिडल टर्म यू हैव टू ऑलवेज चेंज द साइन। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 तो -2 एंड दिस वन इज व्हाट +4। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा +3। हाँ तो लीव दिस टर्म नाउ, ये रो कॉलम जोड़ दो 3 कितना आएगा यहाँ पे, ये 3 है तो 3 +4 आ रहा है ना -4 हो जाएंगे ये एंड दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यार। देखो नीचे लिखो क्या एक स्टेप, चलो ठीक है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या आ जाएगा 2 × -5 करेक्ट। ये कितना आएगा 2 -3 ये सॉरी ये देखो अगेन गलत हो गया यहाँ पे, ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1। हाँ तो यहाँ पे कितना आएगा ये -2 × 2 and +3 × what is here -1। that means you will get -2 -4 and -3 and that means what will get here -9। देखो ये आ रहा -9। देखो साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 इन द ब्रैकेट,
ये टर्म छोड़ दो, देखो ये 2 -3 वाइल टेकिंग दिस टर्म माइनस साइन चेंज करना है इन्हें, ये टर्म छोड़ दो, अब क्या आ जाएगा -6 -4 -6 आएगा कि +6 6 -4, ये टर्म छोड़ दिए तो ये +6 आ जाएगा और ये साइन चेंज करना है बाद में +3, तो ये छोड़ दो तो क्या आ जाएगा -9 +4 -9 +4। तो चलो इसको भी स्टेप वाइज ही कर लेता हूँ मैं, -1 × -1 -2 इंटू वॉट विल गेट 2 एंड +3 इंटू -5 इज इक्वल टू, तो विल गेट हियर व्हाट इज -1 -4 -15, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी यू विल गेट हियर व्हाट इज -18, तो ये आ जाएगा -18। उसके बाद में इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू, हाँ तो ये टर्म छोड़ दो, अब देखो क्या आ रहा है 6 -4, देन व्हाइल टेकिंग दिस टर्म यू हैव टू ऑलवेज चेंज साइन, माइनस है तो प्लस आ जाएगा 1, अब ये रो कॉलम छोड़ दो, ये क्रॉस -2 +4 हो जाएंगे, ये -2 +4, ठीक है। उसके बाद में ये +3 है, तो ये छोड़ दो, तो देट इज व्हाट 4 और ये +12 हो रहा है ना साइन चेंज -12, एंड दैट मीन्स यू विल गेट हियर 2 इंटू 2 +1 इंटू 2 एंड +3 इंटू -8, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग 4 + 2 -24, that means we are getting what is 6 -18, so this is what -18, and now dz, तो देखो अब यहाँ पे 2 in the bracket, हाँ तो what is get -4, ये 9 ही -9 हो रहा है ना, +9 हो जाएगा, ऐसा लेते समय साइन चेंज होगा, पहले तो ऐसे ही लेना है, ये लेते समय साइन चेंज, ठीक है। उसके बाद में -2, तो क्या करना है, ये टर्म जोड़ दो, 4 +12 आ रहा है ना, -12 हो जाएगा, 4 +12 आ रहा है ना, माइनस हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये माइनस एज इट इज रहेगा, -1 इंटू, हाँ तो क्या जाएगा, ये टर्म जोड़ दो अब, तो क्या 3 +4 आ रहा है ना, -4, एंड देयरफॉर विल गेट हियर 2 इंटू 5 -2 इंटू -8 and -1 into -1 is equal to, so we'll get here 10 plus 16 plus 1 यानी 17 27, तो ये आ जाएगा 27। देखो अब ये डिटर्मिनेंट लास्ट ईयर अपन पढ़े थे यानी, और उसमें प्रैक्टिस भी की थी कैसे फाइंड करा। अब मिस्टेक होने के चांसेस डेफिनेटली है यहाँ पे, इसलिए केयरफुली करना है, और ये वैल्यू गलत होगी तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन गलत आ जाएंगे यानी, तो इसलिए ठीक है। एंड देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल व्हाट इज दैट, x इज इक्वल टू क्या है, dx बाय डी, y इज इक्वल टू dy बाय डी, z इज इक्वल टू dz बाय डी। दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर, x इज इक्वल टू, हाँ तो देखो dx, व्हाट इज dx, -18 डिवाइडेड बाय -9, y इज इक्वल टू अगेन -18 डिवाइड बाय व्हाट इज -9, एंड z इज इक्वल टू व्हाट इज 27 बाय -9, बराबर है ना, -9 27 नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज ऑल्सो 2 एंड z इज इक्वल टू व्हाट इज -3। अब ये जो वैल्यूज है x y z की, इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है 2 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b एंड प्लस -3 वेक्टर c। तो दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो ये एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए आ सकता है, एग्जाम में एक बार आ चुका है 4 मार्क के लिए, तो इसलिए प्रैक्टिस मेन है। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, ये जो इक्वेशन है आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ किया है। अगर आपको मैट्रिसेस की रिडक्शन मेथड अगर आपको इजी लगती होंगी, रिडक्शन मेथड में कैसा है, ये फॉर्म में लिखना पड़ता है, Ax इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए यानी मैट्रिक्स आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, एक्स यानी मैट्रिक्स ऑफ अननोन, बी यानी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, उसके बाद में रिडक्शन मेथड से भी उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप का होमवर्क देता हूँ मैं। तो इस टाइप का जो होमवर्क है पेज नंबर 151 और चलो ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके देखो, ये इस पे एग्जाम्पल 151 पेज है। तो एग्जाम्पल 11 में का सेकंड, 11 में का सेकंड, उसके बाद में पेज नंबर 150, हाँ सॉरी ये 52 है पेज नंबर, हाँ तो ये 150 पे एग्जाम्पल 14 और 15। देखो ये 3 एग्जाम्पल आप करो और मैंने जो मेथड से बताया वो मेथड से ही करो। ठीक है, अब किताब में कैसा क्या है कि डायरेक्टली इसकी वैल्यूज डायरेक्टली दी है तो डायरेक्टली आती नहीं, आप कोई भी मेथड से करके तो कहना है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगले बार फिर दूसरे एग्जाम्पल लेते। थोड़ा एग्जाम्पल मैं रैंडमली ले रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 में के, तो कल फिर उसमें की और दूसरे एग्जाम्पल लेंगे अपन। ठीक है, चलो बाय।